أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على नाज़रीन بينة से गुजारिश है कि अपने माइक्रोफोन बंद कर من दीजिए। ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. मिक्रोफोन नहीं बंद हो सकता बाकी का ये भाई ये तो काफी बड़ा गड़बड़ हो रहा है आज। बहुत इजाज है लेकिन नहीं कर रहा है पूरा है। चलिए सबका बंद हो गया हमारा खुला है। واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها
ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص بارك الله فيكم نكمل الترجمة अब तर्जमा पेश करें और इंशाअल्लाह अब सिस्टम सही हो गया होगा और हमने मदियन वालों की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा उसने कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं और तुम नापतोल में भी कमी ना करो मैं तुम्हें आसूदा हाल दे रहा हूं और मुझे तुम पर घेरने वाले दिन के आज़ाब का खौफ है ऐ मेरी कौम नापतोल इंसाफ के साथ पूरी करो लोगों को उनकी चीजें कम ना दो और जमीन में फसाद और खराबी ना मचाओ अल्लाह ताला का हलाल किया हुआ जो बच रहे तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो मैं तुम पर कुछ निगहबान और दरोगा नहीं हूं और उन्होंने जवाब दिया कि ऐ शुएब क्या तेरी सलात तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादों के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहे उनका करना भी छोड़ दें तू तो बड़ा ही बावकार और नेक चलन आदमी है कहा ऐ मेरी कौम देखो
देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील लिए हुए हूँ और उसने मुझे अपने पास से बेहतरीन रोजी दे रखी है, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं कि तुम्हारे खिलाफ करके खुद उस चीज की तरफ झुक जाऊं जिससे तुम्हें रोक रहा हूं। मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने का ही है। मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मेरी मुखालिफत उन अजाबों का मुस्तहिक बना दे जो कौम नूह, कौम हूद और कौम सालेह को पहुंचे हैं, और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो और उसकी तरफ तौबा करो। यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला और बहुत मोहब्बत वाला है। उन्होंने कहा, ऐ शुआइब, तेरी अक्सर बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती और हम तुझे अपने अंदर बहुत कमजोर पाते हैं। अगर तेरे कबीले का ख्याल ना होता तो हम तुझे संगसार कर देते और हम तुझे कोई हैसियत वाली हस्ती ना गिनते। उन्होंने जवाब दिया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे नजदीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह से भी ज्यादा इज्जत हैं कि तुमसे उसे पसे पुष्ट डाल दिया है? यकीनन मेरा रब जो तुम कर रहे हो तो सबको घेरे हुए है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अब तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि किसके पास वो अजाब आता है जो उसे रिस्वा कर दे और कौन है जो झूठा है। तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ। जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा, हमने शुआइब को और उनके साथ तमाम मोमिनों को अपनी खास रहमत से निजात बख्शी और जालिमों को सख्त चिंगाड़ के अजाब में दर्द पहुंचा जिससे वो अपने घरों में ओझे पड़े हुए हो गए, गोया कि वो उन घरों में भी बसे ही न थे। आगार हो मदियन के लिए भी वैसी ही दूरी हो जैसी दूरी समूद को हुई, और यकीनन हमने ही मूसा को अपनी आयत और रोशन दलीलों के साथ भेजा था फिरऔन और उसके सरदारों की तरफ। फिर भी उन लोगों ने फिरऔन के हकाम की पैरवी की और फिरऔन का कोई हुक्म दुरुस्त था ही नहीं। वो क़यामत के दिन अपनी कौम का पेशरू होकर उन सबको दोज़ख में जा खड़ा करेगा। वो बहुत ही बड़ा बुरा घाट है जिस पर लाखड़े किए जाएंगे। उन पर इस दुनिया में भी लानत चिपका दी गई और क़यामत के दिन भी बुरा इनाम है जो दिया गया। बस्तियों की ये बात खबरें जिन्हें हम तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं, उनमें से बाज तो मौजूद है और बाज की फसलें कट गई हैं। हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि खुद उन्होंने ही अपने ऊपर जुल्म किया और उन्हें उनके माबूदों ने कोई फायदा न पहुंचाया जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे, जबकि तेरे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा, बल्कि और उनका नुकसान ही उन्होंने बढ़ाया। तेरे परवरदिगार की पकड़ का यही तरीका है, जबकि वो बस्तियों के रहने वाले जालिमों को पकड़ता है। बेशक उनकी पकड़ दुख देने वाली और निहायत सख्त है। यकीनन उसमें उन लोगों के लिए निशानी इबरत है जो क़यामत के अजाब से डरते हैं। वो दिन जिसमें सब लोग जमा किए जाएंगे और वो दिन है जिसमें सब हाजिर किए जाएंगे, उसे हम मुलतवी करते हैं। वो सिर्फ एक मुद्दत मुअय्यन तक है। जिस दिन वो आ जाएगी, मजाल ना होगी कि अल्लाह की इज्जत के बगैर, अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई बात भी कर ले। सो उनमें कोई बदबख्त होगा और कोई नेकबख्त। लेकिन जो बदबख्त हुए वो दोज़ख में होंगे, वहां चीखेंगे, चिल्लाएंगे। वो हैं हमेशा रहने वाले हैं, वो वही हमेशा रहने वाले हैं जब तक आसमान और जमीन बरकरार रहें, सिवाय उस वक्त के जो तुम्हारा रब चाहे। यकीनन तेरा रब जो कुछ चाहे कर गुजरता है। लेकिन जो नेक बख्त किए गए वो जन्नत में होंगे, जहां हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और जमीन बाकी रहे, मगर जो तेरा परवरदिगार चाहे, ये बेइंतहा बख्शिश है। इसलिए आप उन चीजों से शक शुबहा में ना रहें जिन्हें ये लोग पूज रहे हैं। उनकी पूजा तो इस तरह है जिस तरह उनके बाप दादों की इससे पहले थी। हम उन सबको उनका पूरा पूरा हिस्सा बगैर किसी कमी के देने वाले हैं।